we were studying respiration in human beings, and on that day we discussed about the parts of respiratory system. I think all of you have learned this diagram and you have drawn it also. So let us recapitulate the various parts of human respiratory system. It starts from the nasal cavities. Nasal cavities, these are openings which are present on the nose. देन नेजल कैविटी जो है दैट लीड्स टू अ पैसेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज. नेसल पैसेज, देन देयर इज फेरिंक्स, देन देयर इज लैरिंक्स, and there is written trachea. After trachea bronchi are there, and then bronchioles, then alveolar sac, diaphragm, and lungs and ribs. So these are the various parts of a human respiratory system. Now we will study about how human respiration takes place and what are the function of its various parts. All of you know that human being takes its food, digests it, and that is digested by our digestive system. Now the food has been digested, it has been converted into glucose, and now it has to release energy. And for the release of energy, what is required? Oxygen is required, and that oxygen will be supplied to the body, that will be given to the body by our respiratory system. So respiratory system plays a great role in the functioning of our body. Various parts we have discussed, so we will study in detail now. Nostrils, I have just told you that there are two nostrils, these openings, these are called as the nostrils. Then these two nostrils leads to a passage that is called as nasal passage. अगर हम नेसल पैसेज के इंटरनल जो एरिया की बात करें तो दिस इंटरनल एरिया ऑफ द नेसल पैसेज it has some fine hairs and it has some wet substance also. Now what is the role of these fine hairs? When we inhale air, जब हम सांस लेते हैं तो जब एयर हमारे नोस्ट्रल्स में जाती है, नेसल पैसेज में जाती है, तो इट में कंसिस्ट ऑफ सम डस्ट पार्टिकल्स. सो व्हाट दीज फाइन हेयर दे डू, दे ट्रैप दैट डस्ट पार्टिकल्स so that it may not enter in our that lungs or in our trachea or our alveoli. And mucus is present in the inner cavity, that is in the nasal passage, that also traps the dust to enter in our respiratory system. So the function of mucus and hair is to filter the dust particles when we inhale air. और दूसरा जो function है कि when this air passes through the nasal passage, तो यहाँ पर जो है ये वार्म भी हो जाती है ताकि बॉडी के टेम्परेचर के साथ ये क्या कर सके, अकोमोडेट कर सके. आफ्टर नॉस्ट्रल्स देयर इज फेरिंग्स. फेरिंग्स इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये जस्ट जो है नेसल पैसेज कंटिन्यू हुआ आगे एंड इट फॉर्म्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स. फेरिंग्स की जस्ट नेक्स्ट पार्ट दैट इज लैरिंग्स. दिस लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स. जो हमारी प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, मैकेनिज्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन है ह्यूमन बींग्स के अंदर, that is, I think that is the part of your physics and that is studied later by you, that will be studied later. So here we are studying about the various parts of our respiratory system, and it consists of nostrils, pharynx and larynx. Larynx is also called as voice box. Then comes trachea. Trachea is a tube like structure. यहाँ जो स्पेशलिटी है ट्रैकिया की, दैट इट कंसिस्ट ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या होती हैं? यू हैव स्टडीड इन 9th ऑल्सो दैट कनेक्टिव अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज, दैट बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, देन कार्टिलेज इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू. जो बोन, सॉफ्ट बोन्स हमारे ईयर में प्रेजेंट है या हमारी टिप ऑफ द नोज़ में प्रेजेंट हैं, जो कि समवट फ्लेक्सिबल होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उस कनेक्टिव टिश्यू को हम कार्टिलेज बोलते हैं. जो ट्रैकिया है, इट इज़ मेड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. और जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं ये क्या करते हैं, जब अगर सपोज़ वहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर है, हमने ब्रीथ इन कर लिया है, एयर अब जो है अंदर चली गई है लंग्स के पास में, तो जो ट्रैकिया है ये कोलैप्स ना हो, इसको कोलैप्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन द एब्सेंस ऑफ एयर. नेक्स्ट पार्ट इज़ ब्रोंकाई.
This trachea, after entering into the lungs, get divided into two parts, that is called as bronchi. एक जो left bronchi that will enter into the left lung, then right bronchi that will go to the right lung. So bronchi, a pair of bronchi come out from the trachea. Trachea से दो पेयर, मतलब एक पेयर है, two bronchi हैं, और ये क्या करते हैं, with one bronchus going to each lung, हर लंग के अंदर एक bronchi चला जाएगा. Then bronchioles, जब ये जो ब्रोंकाई हैं फर्दर आगे जब इनमें से ब्रांचेस अराइज होती हैं, जैसा कि डायग्राम में शोन था, ये जो डायग्राम में जो ब्रांचेस शोन हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स. देन देयर इज एल्वियोलाई. एल्वियोलाइज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, राउंड बैलून लाइक, स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाइज. और कहाँ से अराइज हुई, जब ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट, ख़त्म हो जाते हैं. तो ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेशन के टाइम राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर देते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज alveoli. These alveoli are made of very thin membrane and they have blood capillaries there. So what will happen, their exchange of gases will take place. क्वेश्चन अगर आता है कि where the exchange of gases take place, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कहाँ लेता या देता है रेस्पिरेशन के टाइम, तो एल्वियोलाइज की वॉल्स जो कि थिन मेम्ब्रेन है, लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर देयर, ब्लड सप्लाई इज देयर, सो देयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द alveoli. If we talk about the passage of air, that how it enters and then what it does, from which part it goes to which part it goes. So the air enters in the respiratory system from nostrils, then nasal passage is there, nasal cavity, then pharynx, larynx, trachea, then bronchi, and then lungs, then bronchioles and alveoli. सो दिस इज़ द पैसेज जो कि एयर जो है ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद फॉलो करती है. एंड हेयर ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल एबल टू सी एल्वियोलाइज जो हैं. क्या है एल्वियोलाइज, जब ये ब्रोंक्यूल्स, जब इनकी ब्रांचिंग हुई है, ब्रोंकाई से ब्रांचिंग हुई ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स से जो आपको सैक लाइक राउंड स्ट्रक्चर्स आपको विजिबल हैं, दीज आर कॉल्ड एज. We are talking about mechanism of breathing and we have just talked that what happens during inhalation. जब हम एयर लेकर जाते हैं तब क्या होता है, डायफ्रैगम मूव्स डाउन, लंग्स और जो है वो एक्सपैंड हो जाएंगे, क्योंकि रिब केज भी क्या हो गई है, अप हो गई है, स्पेस क्रिएट हो गया है, एंड एयर विल बी इनहेल्ड इन द लंग्स. दिस इज कॉल्ड एज इनहेलेशन. Now what happens during exhalation? Here the diaphragm will move up. डायफ्रैगम ऊपर हो जाएगा, रिब केज जो कि ऊपर हुई थी, दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर विल बी लेस स्पेस, सो द लंग्स विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड वी विल एक्सेल द एयर. हियर यू कैन सी दिस डायग्राम. हेयर व्हाट इज़ हैपनिंग, एक्सहेलेशन हो रही है, डायफ्रैगम शो कर रखा है, डायफ्रैगम अप हुआ, डायफ्रैगम अप हुआ, रिब केज जो है वो मूव्स इन, नीचे की तरफ गई, जिसके कारण लंग्स पे प्रेशर आया और एयर क्या हो गई, मूव्स आउट, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन. नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ इनहेलेशन. डायफ्रैगम लोअर डाउन हो रहा है, रिब केज मूव आउट यानी अप हो रही हैं, स्पेस बीच में क्रिएट होगा, लंग्स विल गेट द मोर स्पेस एंड इनहेलेशन ऑफ एयर विल टेक प्लेस. Here it is the table which is showing difference between inhalation and exhalation, mechanism of inhalation and exhalation. Thoracic cavity expands, ribs lift upwards, diaphragm becomes flat in shape and volume of the lung increases and air enters the lung. And in exhalation, thoracic cavity will contract, ribs will move downward, diaphragm become dome shaped and volume of the lung decreases and air exit out from the lungs. So this is the mechanism of breathing. Now I will send you the video which will show the working of human breathing. So you go through that so that you can easily understand the concept. Thank you. Students, we are studying respiration in human beings. Until now we have studied the definition, types of respiration, then respiratory system in human beings and mechanism of respiration. In our previous class we studied how respiration takes place in human beings, means the mechanism of respiration, and in mechanism we talked about the role of rib cage, diaphragm and lungs. Now
Along with these organs of respiratory system, there is a special pigment present in our blood that is called as hemoglobin, which is a red colored pigment which provides red color to the blood also. And the function of this hemoglobin is to carry oxygen. यानी कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, वो भी गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है. देखिए, जब बॉडी के वेरियस सेल्स ने फंक्शन कर लिया, सेल्स ने जब फंक्शन किया, व्हाट दे विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. That energy will be used by the body. Now what is left? Carbon dioxide is left in the cells. So what blood will do? Blood will collect all carbon dioxide from various cells and it will bring this deoxygenated blood to the lungs. अब जो ये deoxygenated blood है lungs के पास आ गया. lungs के पास जो है small वेसल और वी कैन से बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जिन्हें हम एल्वेलाइज कहते हैं. तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है जब एल्वेलाइज के पास आता है, तो एल्वेलाइज के पास क्योंकि हमने ब्रीथ इन किया था, ब्रीथ इन से व्हाट इज़ प्रेजेंट इन द लंग्स, इन द एल्वेलाइज ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट. और ब्लड क्या लेकर आया है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो एल्वेलाइज के सरफेस पर ब्लड क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा गैसेस को. क्या दे देगा? इट विल गिव CO2 टू द लंग्स एंड इट विल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. यहाँ पर ब्लड एल्वेलाइज के पास से कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा जो उसने बॉडी से कलेक्ट की है, और ऑक्सीजन को ले लेगा जो हमने रेस्पिरेशन के टाइम, ब्रीथिंग के टाइम जो हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में गई है. तो यहाँ पर जो है ये जो एक्सचेंज है वो किससे हो रहा है? कौन से मेथड से? डिफ्यूजन से. डिफ्यूजन सब फेमिलियर हैं. फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. सी, जो ब्लड बॉडी से आया है इट हैज़ मोर कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इसके पास ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड विच इज़ प्रेजेंट इन द एल्वेलाइज. एल्वेलाइज में तो कम कार्बन डाइऑक्साइड है या ना के बराबर ही है, और जबकि जो ब्लड बॉडी से आया उसके पास बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है. So concentration of carbon dioxide is more in blood which has come from the body. So the carbon dioxide will enter from high concentration to low concentration. किस में enter कर जाएगी? alveoli में enter कर जाएगी by the process of diffusion. Same जो है, क्योंकि alveoli ने हमने breathe in किया, alveoli के पास ब्लड जो है वो रिच इन ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मोर है एल्वेलाइज में. तो एल्वेलाइज जो हैं वो क्या करेंगी? ब्लड को क्या दे देंगी? ऑक्सीजन दे देंगी. मीन्स ब्लड विल फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर जो है डिफ्यूजन हेल्प कर रहा है. लेकिन डिफ्यूजन के साथ साथ बिकॉज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर जो है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसकी अभी हमने बात की थी, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. क्या करेगा ये? इसकी एफिनिटी होती है, बाइंड कर जाता है ये ऑक्सीजन के साथ में, और इसकी एफिनिटी CO2 के साथ में भी कंबाइन होने की होती है. तो डिपेंडिंग अपॉन किसका अमाउंट कम या ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग जो है हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर उसको कैरी करता है वेरियस प्लेसेस पर. यहाँ पर देखिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट विल बी रिमूव, दैट विल बी कैरीड आउट बाय दिस हीमोग्लोबिन, एंड ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो कैरीड आउट बाय दिस हीमोग्लोबिन डिपेंडिंग अपॉन कि जो है किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है. और अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, अट्रैक्शन है, दैट इज़ मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इसलिए ये ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑक्सीजन जो है उसको कैरी करता है. So this we have completed our topic respiration in human beings, and now we will be doing question answers of this exercise, this respiration in human beings.